Hello everyone, welcome back. Today I am here with this important topic of plant taxonomy, that is biometrics, numerical taxonomy and cladistics. So in this presentation I will discuss about this biometrics जिसे हम बोलते हैं जैविक माप और biological measurements. The next is numerical taxonomy. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि how this statistical data, mathematical data help करता है classification of plants and animal. Then what are the various logical steps involved in numerical taxonomy? Like we have OTU, there is operational taxonomical units, then selection of a character which is used for classification, or weightage and coding given to a particular character. कैसे हम किसी character को कितनी weightage देते हैं और कुछ code use करते हैं. Then what are the various merits and demerits of numerical taxonomy, its application, and finally the cladistics. Cladistics means it is a method in which we classify animals or plants on the basis of its phylogenetic history, means evolutionary history के basis पे हम इसमें classification करते हैं living organism की, and this is done with the help of a diagram which is known as cladogram, जिसे कहा जाता है cladogram. तो ये सारी चीज़ें मैं इस presentation में discuss करूँगा. Let's start. So firstly comes biometrics. So this word is derived from two words, that is bio means living or life, metrics means measurement. So इसमें हम use करते हैं special biological features like we have fingerprinting, mapping, then facial recognition, retina scan, जो आजकल के present day में use किया था for identification. For example इसे हम use करते हैं smartphone में recognition के लिए, then attendance जो होती है आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो सिमिलरली दिस कैन बी यूज इन केस ऑफ प्लांट्स फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस. तो प्लांट्स में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल फीचर्स को मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे प्लांट की क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है. सो दैट टेक्निक इज़ नोन एज बायोमेट्रिक्स. सो बायोमेट्रिक वर्ड इज derived from Greek word bio which means life, metric means measure. So life measurement, जैविक माप is biometrics. So इसमें हम यूज़ करते हैं यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा मैंने पहले डिस्कस कर लिया. इन केस ऑफ ह्यूमंस हम आजकल यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट मैपिंग, जिसमें फिंगरप्रिंट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर रिकग्निशन. दैन फेशियल रिकग्निशन, दैट इज़ दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन आवर स्मार्टफोन्स. दैन रेटिना स्कैन होता है. So these physiological characteristic features are used for identification of organism, जिससे हम एक organism को clearly identify कर सकते हैं. So this system can be either identification system or verification system. तो दो तरह का ये हो सकता है, identify करने के लिए और verify करने के लिए system को हम यूज़ कर सकते हैं. It involves 3 steps. तो 3 step का process होता है इसमें. First is capturing, second is processing and third one is enrolling. तो पहले for example we are taking photograph of some plant, उसकी हम इमेज लेते हैं किसी भी प्लांट की, दैन हम इस इमेज को स्टडी करते हैं प्लांट की और उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके हम फिर उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मींस दैन फाइनली वी विल कंपेयर इट विद अदर प्लांट्स, और उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करके फाइनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट प्लांट. सो बेसिकली 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज़ कैप्चरिंग द इमेज, किसी प्लांट का फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम उसके फीचर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. मीन्स प्लांट हाइट स्टडी कर लेते हैं, उसके फीचर्स कैसे हैं, ट्री है, हर्ब है, श्रब है, दैन लीव्स का अरेंजमेंट. दीज आर सम कैरेक्टर्स जिनको हम स्टडी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड फाइनली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट प्लांट. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस टेक्निक बायोमेट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ऑल्सो. Next comes numerical taxonomy or taximetrics. So this concept was first developed by one person named as Michel Adanson. तो इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकल डाटा का यूज़ किया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो इसलिए इस ब्रांच को बोला जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी. सो माइकल एडेंसन, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, he devised a natural system of classification and used statistical methods in botanical classification. Statistical method means using mathematical data for classification of plants. तो mathematical data हम obtain करते हैं, like we have different numbers. For example, we have number of petals, number of sepals, then branching pattern, number of roots. So these numerical data can be calculated, and this can be utilized in
द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसे हम इस मैथमेटिकल डाटा को हम ऑब्टेन करके क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ numerical data that we can obtain from the plant, and that helps in classification. The next, there is another term that is used for this, that is phonetics. तो phonetics भी एक टर्म यूज़ की जाती है इसके लिए, जो कि ड्राइव की गई वर्ड Phainein से। Phainein मीन्स अपीयर, सिंपल, जो दिखता है, दर्शाता है। वो जो कैरेक्टर्स हमें विजिबल हैं बाहर से, वो जब हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे भी हम इसमें यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसे टैक्सीमेट्रिक भी कहा जाता है। एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी। जो ओवरऑल सिमिलरिटी होती है, यूजुअली मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से हमें दिखते हैं कैरेक्टर्स, और अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, तो उनको स्टडी करके हम इसमें क्लासिफिकेशन में करते हैं। बट इसमें हम फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सो इन दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वी यूज़ दिस मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, और मॉर्फोलॉजिकल जो डाटा होता है उसी को मैक्सिमम यूज़ किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Next, this Adansonian taxonomy was a traditional taxonomical technique, and it was largely popularized by two scientists named as Sokal and Sneath in 1963. तो इनको मेन जो क्रेडिट जाता है इस टैक्सोनॉमी को फेमस बनाने के लिए, दैट गोज टू दिस टू पर्सन नेम्ड एज सोकल एंड स्नीथ। तो इनके वर्क ने इस टेक्निक को, क्लासिफिकेशन की टेक्निक को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। और they divided this field into two branches named as Phenetics and Cladistics. तो Phenetics का मतलब होता है phenology, where that is morphology, in which classification की जाती है on the basis of overall similarity. जो एक्सटर्नली हमें कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है, that comes under this field that is known as Phenetics. Then next comes Cladistics, in which classification are based on the branching pattern of estimated evolutionary history. तो इसमें कोई भी जैसे कॉमन एंसेस्टर है, उससे किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। सो इसमें एक ब्रांचिंग पैटर्न की तरह जो डायग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड क्लैडोग्राम, उसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं। दैट आल्सो हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। दिस ब्रांच इज नोन एज क्लैडिस्टिक्स। इसे कहा जाता है क्लैडिस्टिक्स, जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और इसका ओरिजिन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर किससे ओरिजिनेट हुआ है। सो दैट ब्रांच इज नोन एज क्लैडिस्टिक्स। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को इन्होंने डिवाइड कर दिया है दो फील्ड्स में, नेम्ड एज फेनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स। एंड दे रोट वन बुक नेम्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये एक बड़ी फेमस किताब इन्होंने लिखी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के ऊपर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एंड दे डिफाइंड दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एज ग्रुपिंग बाय द न्यूमेरिकल मेथड्स, मीन्स प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यूज मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट्स इनटू टैक्सा। एक पर्टिकुलर टैक्सा में क्लासिफिकेशन की जाती है। टैक्सा, एज वी ऑलरेडी नो दैट इट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, लाइक वी हैव जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर। तो ये जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर स्टेट्स। तो जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी टैक्सा के, उसके बेसिस पे हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं प्लांट्स की। The next, there was another definition which was given by Haywood in 1967. According to Haywood, जो numerical taxonomy है, it is the numerical evaluation of similarity between groups of organism and the ordering of these groups into higher ranking taxa on the basis of this similarity. तो ये भी सेम डेफिनेशन ही है ऑलमोस्ट, कि इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, मीन्स जिसके कैरेक्टर्स सिमिलर हैं उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं दे आर प्लेस्ड इन अनदर ग्रुप, और उसके बेस पे हम इन्हें प्लेस करते हैं इनटू हायर रैंकिंग ऑफ टैक्सा। किस ग्रुप में आता है वो, लाइक वी हैव ऑर्डर, दैन फैमिली और जीनस और स्पीशीज। सो इस ग्रुप में रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और सम कैरेक्टर्स विच आर ऑब्जर्वेबल। Next comes principles of numerical taxonomy, which were given by Sokal and Sneath in 1963. These principles are also known as New Adansonian principles. And these principles are as follow. The first principle is, so the greater the content of information and characters,
of a taxa taken into consideration and better given classification will be. मीन्स सिंपली जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए उतनी ही एक्यूरेट वो क्लासिफिकेशन होगी. For example, we have different characters that we can study in case of plant. Like we have plant, basically habit means it is tree, shrub or herb. Then finally, what type of root system it has. Then what is the position of branch. Then position of flower, color of flower, position of ovary. Then the type of stamens. So these are various characters that we can study. और ये जो characters हैं जितने ज़्यादा हम study करेंगे, consider करेंगे study के लिए, तो जो क्लासिफिकेशन होगी उसके रिजल्ट से दैट विल बी दैट मच एक्यूरेट, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. द नेक्स्ट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन शुड बी गिवन इक्वल वेटेज इन क्रिएटिंग न्यू टैक्सा. तो जो भी हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, लाइक वी हैव हैबिट ऑफ अ ट्री, देन रूट सिस्टम और फ्लावर कलर, सो जो भी कैरेक्टर कंसिडर किया जा रहा है उन सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा फॉर क्रिएटिंग न्यू टैक्सा. Then among the so many characters which are considered for comparison, बहुत सारे characters हम study करते हैं comparison करने के लिए, but जो overall similarity होती है that is between any two entities is taken as a function of the individual similarities. For example, I am taking the example of root system. तो जो root system plants में present होता है, either it is tap root system or it is adventitious root system. So it's एट अ टाइम दो ही एंटिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. लाइक वी हैव फ्लावर विच मे बी फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स. सो दीज आर कैरेक्टर्स, देयर आर टू कैरेक्टर्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एट अ टाइम विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. Next principle of numerical taxonomy is that there are some differences in the character correlation in different groups that we study. So जो character का correlation होता है means similarity in characters वो vary करती है groups to groups. That also helps in classification और differentiation, जिससे कि हम एक groups को separate कर सकते हैं एक दूसरे से. That helps in classification. Then by this study we can make phylogenetic outcome, means इससे हम इन characters को study करके we can assume some evolutionary pathways एंड मैकेनिज्म्स, मीन्स कि किस कॉमन एंसेस्टर से कोई प्लांट ओरिजिनेट हुआ है. सो वो जो ओरिजिन है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर दैट वी कैन ऑब्जर्व और एज्यूम बाय दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. एंड द बेसिस ऑफ दिस टैक्सोनॉमी इज़ फेनेटिक सिमिलरिटी, मीन्स जो ओवरऑल सिमिलरिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में वही इस क्लासिफिकेशन का बेसिस बनता है. इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की. There are some logical steps of numerical taxonomy which include OTUs like operational taxonomic units. So ये जो term है this was coined by Sokal and Sneath in context to numerical taxonomy. और OTU is the basic unit in any particular study. In case of numerical taxonomy जो basic unit है किसी भी पर्टिकुलर स्टडी का जिससे हम न्यूमेरिकली क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को. सो दिस इज़ द बेसिक यूनिट OTUs. एंड दीज यूनिट्स कुड बी इंडिविजुअल और सुपर इंडिविजुअल कैटेगरी सच एज, इसमें हम ले सकते हैं स्पीशीज़ को, जीनस को और इवन हायर रैंक्स टैक्सा को भी. सो ये यूनिट कोई भी हो सकता है इन ग्रुप्स में से, और इंडिविजुअल ग्रुप भी इसमें आता है लाइक स्पीशीज़, जीनस और हायर रैंक. द टर्म जनरली रेफर्स टू एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलैरिटीज़. तो इस टर्म को हम यूज़ करते हैं जनरली एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो सिमिलैरिटीज़ शो करता है, मीन्स सिमिलर कैरेक्टर्स को शो करता है. और इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाय सिमिलैरिटीज़ हैविंग सिमिलर DNA सीक्वेंसेस. लाइक वी हैव सम ग्रुप्स जो कि कुछ सिमिलर सीक्वेंसेस शो करेंगे DNA के बाय यूजिंग टैक्सोनॉमिक मार्कर जीन. लाइक वी हैव दिस इमेज हियर. तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज़ हैं, और जो सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मार्कर जीन. दैट इज़ द जीन विच यूजुअली कोड्स फॉर दिस 16S rDNA, दैट इज़ राइबोसोमल DNA. तो इसे हम एज अ मार्कर की तरह यूज़ करते हैं. एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंसेस हैं उनको स्टडी करने के बाद हमारे पास डिफरेंट OTUs आते हैं, दैट इज़ ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट साइन से, सिम्बल से. लाइक हेयर
इन दिस इमेज OTU1, यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं लाइक दिस वन एंड दिस, वी यूज़ दिस डार्क लाइन फॉर दिस बैक्टीरियाज, तो ये हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस मार्कर जीन। द नेक्स्ट OTU2 में ऐसे बैक्टीरियाज जिसके लिए डॉटेड लाइंस यूज़ की आती हैं लाइक दिस। सो इन ये सिमिलरिटीज़ शो कर रहे हैं, इस तरह से हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। OTU3 विच शोज़ डॉटेड लाइन जो कि थोड़ी सी बड़े डॉट्स हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन। तो ये सिमिलरिटीज़ शो कर रहे हैं बैक्टीरिया, जबकि जब ये क्लस्टर में थे मीन्स कम्बिनेशंस में थे, सो इन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मार्कर जीन्स। So here we can identify these species on the basis of this by using these marker genes. So this is how operational taxonomic units are used in classification. Next comes selection of characters, which is the logical step in numerical taxonomy. So Sokal and Sneath organized 4 categories of characters for classification. First was general characters. तो इसमें include किए गए थे binary characters, which means it contain 2 statements जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, सच एज एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सम फीचर लाइक रूट सिस्टम। कुछ में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, कुछ प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम एब्सेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू 2 कैटेगरीज। कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स स्टडी करते समय हम 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक वी हैव कलर ऑफ द फ्लावर, जैसे रेड है, येलो है, ऑरेंज है। तो इसमें हम डिफरेंट 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए, प्लांट्स विद रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ फाइलेटिक कैरेक्टर। इसमें हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, प्लांट्स की कि प्लांट्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उन कैरेक्टर्स को स्टडी करके प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लैडिस्टिक कैरेक्टर्स, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर obtained by using the branching sequences of evolution. इवोल्यूशन कैसे हुआ है किसी प्लांट का, उसका जो ब्रांचिंग पैटर्न बनता है, सो बाय यूजिंग दैट पैटर्न वी कैन आल्सो क्लासीफाई द प्लांट्स। देन एज वी नो दैट जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज मिसलीडिंग एंड अनइन्फॉर्मेटिव इन केस ऑफ क्लैडिस्टिक कैरेक्टर्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं उन्हें मिसलीडिंग मानते हैं या फिर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम्स फिनेटिक कैरेक्टर्स। सो फिनेटिक कैरेक्टर्स बेस्ड होते हैं ओवरऑल जो एक्सटर्नल सिमिलरिटी दिखती है हमें प्लांट्स की, उसके बेसिस पे हम जब प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, सो दैट कैरेक्टर्स आर नोन एज फिनेटिक कैरेक्टर्स। और इन्हीं कैरेक्टर्स की स्टडी को हम यूनिट कैरेक्टर भी कहते हैं, मीन्स इन्हें कंसिडर किया था एक सिंगल यूनिट की तरह। नेक्स्ट लॉजिस्टिक स्टेप इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज वेटिंग एंड कोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम किसी भी कैरेक्टर को असाइन कर सकते हैं सिंबल और मार्क। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज 1 to 3 दैट इज नंबर, और वी कैन यूज सिंबल प्लस और माइनस। सो दिस इज कॉल्ड कोडिंग ऑफ कैरेक्टर, इसे हम कहते हैं कोडिंग ऑफ कैरेक्टर। अगर कोई भी कंपेरिजन नहीं है सो दैट वी कैन यूज दिस NC, दैट इज कॉल्ड नो कंपेरिजन। सो 2 स्टेट की कोडिंग जिसमें हम यूज़ करते हैं सिंबल लाइक प्लस और माइनस। कोई चीज़ प्रेजेंट है, मान लीजिए जो स्टेमन्स हैं वो फ्री हैं और या फ्यूज्ड हैं। अगर वो फ्री हैं तो यू कैन यूज़ दिस प्लस साइन, अगर वो फ्यूज हैं तो वी कैन यूज़ दिस माइनस साइन। और फॉर अदर कैटेगरीज वी कैन यूज़ इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो माइनस साइन यूज़ करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड 2 स्टेट कोडिंग। देन वी कैन यूज़ मल्टी स्टेट कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल ऑफ कलर, तो हम कलर यूज़ कर सकते हैं 1 फॉर रेड, 2 for orange, 3 for yellow, 4 for purple. So we can use these different numbers to assign different colors. So that is called multi-state coding. Then in doing so, characters may be given more or less weightage. तो किसी कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है, मीन्स ज़्यादा इफेक्टिव कैरेक्टर है वो, और कुछ को कम दिया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड वेटिंग ऑफ कैरेक्टर। Another important step in numerical taxonomy is cluster analysis. Cluster means grouping. तो ऐसे plants जो similar characters show करते हैं, so they are grouped together. Successfully weighted and coded operational taxonomic units are grouped on the basis of their resemblance and differences called as cluster analysis. तो जो plants similarities show करते हैं उन्हें एक group में रखा जाता है, और जो similarity show नहीं करते उन्हें हम separate करते हैं। So that resemblance in characters and assembly of these
plants which shows similarities in characters is known as cluster analysis. तो groups में उसे analyze किया था, that is called cluster analysis. So these are some logical steps which are involved in numerical taxonomy. Next comes merits of numerical taxonomy. तो इसकी बहुत सारी advantages हैं इस taxonomy की. It is much better as compared to the conventional taxonomy. तो जो data conventional taxonomy से मिलता था वो इस taxonomy में बहुत ज़्यादा improve किया जाता है. That helps in very accurate classification of plants. Then data collected from sources like इसमें जो data collection की जाती है that is from different sources like morphology, physiology and other sources. तो बहुत सारे sources से data collect किया जाता है जिसकी वजह से जो classification होती है that is somewhat accurate. Accuracy बढ़ जाती है classification में. Then more sensitive methods in delimiting taxa. The data obtained can be efficiently used in construction of better keys. So keys are basically set of rules जिससे हम प्लांट क्लासीफाई करते हैं. तो जो डाटा हमें इस टेक्सोनॉमी से मिलता है उसके हेल्प से हम बहुत अच्छी कीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, क्रिएशन ऑफ मैप, डिस्क्रिप्शन और कैटलॉग्स जिसमें सेट ऑफ रूल्स दिए होंगे जिससे हम प्लांट्स को ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं. The number of existing biological concepts have been reinterpreted in the light of numerical taxonomy. जो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो रखी है उसको भी हम फिर से क्लासीफाई और एक्यूरेटली क्लासीफाई करने के लिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस टेक्सोनॉमी अलाउज मोर टेक्सोनॉमिक वर्क टू बी डन बाय लेस स्किल्ड वर्क. तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट बॉटनिस्ट और टेक्सोनॉमिस्ट चाहिए. सो कुछ कम स्किल्ड के लोग भी इस काम को कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर. तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके कम स्किल वाले लोग भी, वर्कर्स भी क्लासिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं प्लांट की क्लासिफिकेशन में. सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. इस मेथड की कुछ डिमेरिट्स भी हैं. फर्स्ट इज इट इज़ नॉट यूजफुल इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. मीन्स जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये. इफ़ यू वांट टू क्लासीफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तो उसमें हम इस टैक्सोनॉमिकल ब्रांच को यूज़ नहीं कर सकते हैं. दैन कैरेक्टर सिलेक्शन इज़ ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इन दिस अप्रोच. कि कौन सा कैरेक्टर चूज़ करना है. सो वो इसकी एक ड्रॉबैक है. वी आर अनेबल टू फिक्स दैट कैरेक्टर कि एक डेफिनेट कैरेक्टर को स्टडी करना है. तो ये सिलेक्शन है कैरेक्टर की, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच. द नेक्स्ट, इफ़ कैरेक्टर चूजन फॉर कंपेरिजन आर इनएडिक्वेट, मीन्स कोई पर्टिकुलर एक एक्यूरेट कैरेक्टर हम स्टडी नहीं करते हैं एट अ टाइम. सो जो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल डाटा हमें मिलेगा दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो जिसकी हेल्प से हम प्लांट क्लासीफाई करेंगे दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री. देन डिफरेंट टेक्सोनॉमी, जो टेक्सोमेट्रिक प्रोसीजर्स हैं उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आता है. सो कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है. देन मेजर डिफिकल्टी इज़ टू चूज़ अ प्रोसीजर फॉर पर्पज़ एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बाय दिस मैकेनिकल एड्स. तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो फॉलो करना पड़ता है क्लासिफिकेशन के लिए वो इसमें है नहीं अवेलेबल. सो इसलिए जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं दे आर नॉट दैट मच सेटिस्फैक्ट्री. एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंफर्म वेदर अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वुड रियली गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दैन दोज यूजिंग अ स्मॉल नंबर. तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू ऑब्टेन द राइट रिजल्ट और गुड रिजल्ट. The proponents of biological species concept may not accept the specific limit bounded by this method. So these are some disadvantages or demerits of numerical taxonomy. Next term is cladistics. So animal or plants are classified on the basis of phylogenetic relationship. Evolutionary जो study होती है उसके basis पे हम plants और animal को classify करते हैं. That is on the basis of shared character. जो characters वो share करते हैं that can be traced to a group's most recent common ancestor. तो किस एंसेस्टर से जो प्लांट और एनिमल है वो ओरिजिनेट हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स बाय यूजिंग दिस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. सो क्लैडिस्टिक्स रिलेशनशिप आर शोन इन अ डायग्राम दैट इज़ कॉल्ड क्लैडोग्राम. जिस डायग्राम की हेल्प से हम इस क्लैडिस्टिक्स रिलेशनशिप को शो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लैडोग्राम. सो देयर मस्ट बी हैव वन कॉमन एंसेस्टर जिससे कि ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो एनिमल्स हैं वो अराइज हुए हैं. सो इसकी जब हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लैडोग्राम दैट इज़ कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स. नेक्स्ट, phenogram versus cladogram. Phenogram means morphological, जिसमें हम स्टडी करते हैं. सो phenogram is a tree shaped branching diagram that represents an estimate of phylogeny.
जिससे हम फाइलोजेनी के एस्टिमेशन का पता लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फिनोग्राम, जो कि एक ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट, इन फिनोग्राम द ब्रांच लेंथ, जो ब्रांच लेंथ होती है फिनोग्राम में, दिस वन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. मीन जितनी ज़्यादा लेंथ है उतना ही उसमें इवोल्यूशनरी चेंज आया है. सो दिस लेंथ ऑफ दिस phenogram's branch is directly proportional to the amount of evolutionary change. Then similarly a cladogram is also a branching tree. ये भी एक branching tree है, एक डायग्राम जिसमें branching tree की तरह शेप होती है, and representing a phylogeny where the branches are of equal length. इसमें जो branches होती हैं वो होती हैं सभी equal length की. So this is phenogram versus cladogram. So what are these two terms used for? This is all about this Biometrics, Numerical Taxonomy and Cladistics. This was all about for our today's discussion about Biometrics, Numerical Taxonomy and Cladistics. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.